Hello everyone, welcome to the RUMU podcast. I'm Sakshi Patil and currently I'm studying in 6th semester and I have my friend here. I would like to ask him to introduce himself. Hello everyone. Thank you, Sakshi. I am both very pleased and happy to be part of this podcast. And I am Yogendra Krishnia. I am from India and currently pursuing my MBBS in sixth semester. तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं डॉक्टर योगेंद्र? Today, our topic of discussion would be iron deficiency anemia. बिकॉज ये टॉपिक इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अनेमिया इन वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन and the most important factor is that it is most of the time undiagnosed. Like patients को पता भी नहीं होता कि उनको anemia है और they suffer, and after a long period of time they might get complications which are very severe. So इसका better diagnosis हो, early diagnosis हो, उसके लिए awareness होना बहुत ज़रूरी है और वो हम आज के इस पॉडकास्ट के जरिए से हम लोगों को बताना चाहेंगे. जी, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. तो इसके कॉजेस क्या है एंड एज अ गर्ल आई वुड लाइक टू आस्क व्हाई इज इट मोर कॉमन इन गर्ल्स देन बॉयज? First of all, I would like to define what is iron deficiency anemia. It is a form of microcytic anemia where the cytoplasmic maturation of the red blood cell is decreased due to low intake of iron, which can lead to low production of hemoglobin and hence anemia. The causes can be various because since it is very common, so there are causes which we face in our daily life. Like the primary cause for iron deficiency anemia is nutritional deficiency. Like people are not aware and their daily diet doesn't have the sufficient amount of iron that is to be taken to get rid of these anemia symptoms. Like in case where non-vegetarians eat a sufficient amount of red meat, which is the richest source of iron, so they might not have these problems. But vegetarians who have only limited sources like green leafy vegetables, jaggery and nuts, they might have complications related to anemia. Also, the girls in the reproductive age, they might have menorrhagia, which is frequent and high bleeding during menstruation. That might be one of cause which can lead to an iron deficiency anemia, and they might also not aware of this. So हम इस पॉडकास्ट से ये भी उनको बताना चाहेंगे कि रिप्रोडक्टिव एज में ग्रुप में जो लड़कियां हैं उनको अपने इन चीज़ों का ध्यान खुद से रखना चाहिए. एंड इफ दे आर हैविंग फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन एंड हाई ब्लीडिंग, दे शुड कंसल्ट एन डॉक्टर बिकॉज इनके सिम्टम्स सडनली आना जरूरी नहीं है, बट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट माइट बी सीवियर. And also the main cause for iron deficiency anemia in men, it is hemorrhage, like chronic bleeding, which can be occur in the cases of duodenal ulcers and colorectal tumors. So in men, these are the primary cause for iron deficiency anemia. There are also helminthic infestations in children, where hookworms are the parasites which can lead to iron deficiency anemia in children. And also some malabsorptions, like in case of duodenectomy, gastrectomy, and food which is enriched with calcium. These also play a role in leading to iron deficiency anemia. तो जैसे आपने अभी कहा कि लीफी वेजिटेबल्स तो आयरन से रिच होते हैं, तो जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ तो हम ये समझते हैं कि पालक पनीर में कैल्शियम भी होता है, प्रोटीन भी होता है और आयरन भी होता है. बट अकॉर्डिंग टू स्टडीज वो ये कहता है कि पालक पनीर प्रिवेंट नहीं करता आयरन डेफिशिएंसी में. तो इसमें आपका क्या कहना है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि ये फैक्ट है कि पालक सिंस ए ग्रीन वेजिटेबल है, इट इज़ वेरी रिच सोर्स ऑफ आयरन फॉर वेजिटेरियंस. बट जब आप इसका इंटेक पनीर के साथ करते हैं तो ये अपना काम, ये अपना रोल प्ले नहीं कर पाता. और ये मैं समझाना चाहूँगा थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन आवर बॉडी. जैसे कि आयरन हमने फूड इंटेक किया तो आयरन हमारे स्टमक में जाएगा, फिर वहाँ से Fe+3 स्टेट में आयरन डिओडिनम के प्रोक्सिमल पार्ट में इसका अब्जॉर्प्शन होता है, जिसके लिए कि गैस्ट्रिक जो एसिडिक पीएच है वो भी ज़रूरी होता है एक. तो वहाँ जाके एंटेरोसाइट्स में Fe+3 का अब्जॉर्प्शन होगा. बट एक और चीज़ जो यहाँ नोट करने की ज़रूरी है वो है कि Fe+3 में आयरन अपनी बॉडी यूज़ करती है, बट उसका अब्जॉर्प्शन डिओडिनम में Fe+3 स्टेट में नहीं हो सकता.
सो पहले हम उसको Fe+2 में कन्वर्ट करेंगे विथ हेल्प ऑफ साइटोक्रोम बी, जो खुद एक ऐसा फैक्टर है जो एसिडिक पीएच पे ही काम करता है। तो इसके लिए भी जो गैस्ट्रिक पीएच है वो जरूरी हो जाता है। तो इन केसेस ऑफ गैस्ट्रेक्टोमी वी कांट अब्जॉर्ब आयरन। तो एक बार जब Fe+2 में कन्वर्ट हो जाएगा तो DMT1 रिसेप्टर होते हैं, डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर रिसेप्टर्स, ये उस Fe+2 को एंटेरोसाइट्स के अंदर एंटर करने में हेल्प करते हैं। फिर वहां से Fe+2 विथ हेल्प ऑफ फेरोपोर्टिन ये ब्लड की तरफ, यानी कि एंटेरोसाइट्स की वो साइड जहाँ ब्लड फेस करती है उस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं। एक बार जब ये ब्लड में एंटर कर गए तो हमें वापस इनको Fe+3 में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज बॉडी Fe+3 में ही इसको यूज करती है। सो वहाँ हेपेस्टिन सेलुलर प्लाज्मिन होते हैं इनर मेम्ब्रेन पे, जो कि इसको वापस Fe+3 में कन्वर्ट करते हैं, एंड देन इट बाइंड्स टू ट्रांसफरिन प्रोटीन्स एंड फर्दर यूज बाय द बॉडी। ओके, तो ये डिओडिनम में एब्जॉर्ब होता है और फिर ब्लड स्ट्रीम में जाता है, तो ये आगे इरिथ्रोपोइसिस में मेनली क्या इसका काम है? पहले तो मैं ये वापस एक बार रिपीट करना चाहूँगा, सिंस मैंने आपको आयरन एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म बताया, वहाँ मैंने ये चीज़ आपको बताई कि डाइवेलेंट मेटल आयन ट्रांसपोर्टर होते हैं जो कि Fe+2 को एंटर करने में हेल्प करते हैं। तो हमने जो क्वेश्चन पूछा था उसका यहाँ से भी एक रेलिवेंस है कि सिंस कैल्शियम भी डाइवेलेंट होता है, तो अगर मल्टीपल डाइवेलेंट आयंस एक बार हमने एक साथ इंटेक कर लिया तो डेफिनेटली बॉडी में जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनमें सेचुरेशन आता है, वो अनलिमिटेड एक्सेस के लिए होते नहीं है। तो डाइवेलेंट आयंस अगर साथ में और अपन ने इंटेक किया तो वो पहले वाले को ऑब्वियस बात है इनहिबिट करेंगे। तो इसलिए भी हमें डाइवेलेंट आयंस वाले फूड्स को Fe वाले फूड से अलग करके ही इंटेक करना चाहिए। इनका एक साथ डाइजेशन हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। प्लस फिर एक बार जब ये ब्लड में ट्रांसफरिन फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, उसके बाद में आयरन डिपेंडिंग ऑन देयर नीड, लाइक इफ बॉडी में आयरन की जरूरत है, जैसे कि इरिथ्रोपोइसिस अभी चल रहा है और उसमें अभी जरूरत है, तो इट डायरेक्टली दीज ट्रांसफेरेंस कैन गो एंड बाइंड टू द बोन मेरो, रेड बोन मेरो सेल्स। और इफ इन केस की सफिशिएंट अमाउंट ऑलरेडी उनके पास है और इरिथ्रोपोइसिस इतना अभी पीक पे नहीं है, तो इन दैट केस दीज ट्रांसफेरेंट प्रोटीन्स गोज एंड बाइंड टू द लीवर, and liver is the site of storage of these iron, and both of these liver and the hepatocytes and the red bone marrow cells, these must have transferrin receptor proteins TFR1, which is very important. Either in absence of this receptor we cannot bind these transferrin to the cells and they cannot utilize this iron. सो अगर मान लो कि इरिथ्रोपोइसिस अभी पीक पे नहीं है तो ये हिपेटोसाइट्स की सेल मेम्ब्रेन पे जाएंगे, वहाँ TFR1 को बाइंड होंगे और वापस ये उसके अंदर एंटर करेंगे थ्रू हेल्प ऑफ DMT1। DMT1 से एक बार ये एंटर हिपेटोसाइट में करने के बाद में ये वहाँ जाके फेरेटिन नाम से प्रोटीन होता है, वहाँ जाके आयरन फेरेटिन से बाउंड होकर और फेरेटिन फॉर्म में स्टोर होगा। तो यहाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करने के लिए कि आयरन यूटिलाइज बॉडी करता है ट्रांसफेरिन फॉर्म में, बट उसको स्टोर करता है फेरेटिन फॉर्म में इन लीवर। और फेरेटिन को हम इरिथ्रोपोइसिस में हेल्प ये मदद नहीं कर सकता, बिकॉज फेरेटिन के लिए कोई रिसेप्टर नहीं होते बॉडी में, ओनली ट्रांसफेरिन के लिए होते हैं। तो वापस जब स्टोर्ड आयरन को हमें यूटिलाइज करना है, इन केस जब इरिथ्रोपोइसिस की नीड होगी, बॉडी में ब्लड की सेल्स की काउंट कम होगा, तो हम इसको वापस कन्वर्ट करेंगे ट्रांसफेरिन फॉर्म में। तो ये ट्रांसफेरिन फॉर्म में जाके और इरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है। ओके, तो जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ तो हमारे लिए आयरन के सोर्सेस कम होते हैं, तो इसमें बॉडी क्या करती है? बेसिकली देखो, फूड इनटेक में जरूरी नहीं है कि सबका डाइट एक जैसा हो और हर टाइम डाइट आयरन रिच्ड हो। सो बॉडी अपना एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, लाइक अदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, जिसमें वो आयरन की अमाउंट जब बॉडी इनटेक ज़्यादा कर रहा है या कम कर रहा है तो उसको रेगुलेट करने की कोशिश करता है, बिकॉज हर चीज़ का सेचुरेशन होता है। तो जैसे आपने कहा कि अगर किसी के फूड इनटेक में आयरन की अमाउंट कंपेरेटिवली लो है, जैसे कि एक नॉन वेजिटेरियन है वो रोज़ रेड मीट कंज्यूम करेगा, तो ऑब्वियसली उनमें आयरन की इनटेक ज़्यादा होगी। तो बॉडी इसको रेगुलेट दोनों चीज़ों को करेगा कि ज़्यादा वाले को भी ऐसा नहीं है कि कोई एडेड बेनिफिट होंगे, बिकॉज उस केस में क्या होता है कि जब अमाउंट ज़्यादा है तो बॉडी वहाँ पे रिलीज करेगी, वहाँ पे ऐसे फैक्टर्स रिलीज करेगी जिससे कि TFR जो रिसेप्टर्स हैं उनकी अमाउंट कम हो जाएगी, सो दैट कि वहाँ पे ये आयरन जाके ज़्यादा जुड़ ना सके, और फेरेटिन की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि स्टोर्ड फॉर्म ऑफ आयरन बढ़ जाएगा। लेकिन ये भी एक लिमिट तक ही हो सकता है, उसके बाद सेचुरेशन आ जाएगा और जो अमाउंट एक्सिस में है उसकी वजह से TFR2 रिसेप्टर होते हैं हिपेटोसाइट्स पे, वो एक्टिवेट हो जाएंगे और उनके एक्टिवेशन से हिपेटोसाइट्स एक
हेप्सिडिन नाम से एक सब्सटेंस रिलीज करेगा। ये हेप्सिडिन क्या करेगा कि ये जाएगा और जो फेरोपोर्टिन जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि आयरन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है टूवर्ड्स ब्लड सर्कुलेशन, उस फेरोपोर्टिन पे जाके बाइंड होकर उस फेरोपोर्टिन को डैमेज कर देगा। और ये अगर डैमेज हो जाएगा तो जो आयरन हमने एंटेरोसाइट्स के अंदर एंटर किया डीएमटी ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू, वो उसके आगे जाके और ब्लड में एंटर नहीं कर पाएगा। तो इसको हम म्यूकोसल ब्लॉकेज ऑफ आयरन भी कहते हैं इस प्रोसेस को। तो इससे क्या है कि बॉडी जो एक्सिस अमाउंट में आयरन आ रहा था उसको अब अब्जॉर्ब करना बंद कर देगा। तो ऐसा नहीं है कि नॉन वेजिटेरियंस को कोई बहुत एडेड बेनिफिट आएगा अगर वो मोर अमाउंट ऑफ आयरन इंटेक करेंगे। इन योर केस लाइक आपने कहा कि आपका आयरन अमाउंट इंटेक कम हो सकता है, तो उस केस में बॉडी आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन्स रिलीज करता है जो कि एमआरएनए होता है फेरेटिन का, उसके 5' एंड पे जाके बाउंड होगा और फेरेटिन का जो एमआरएनए है उसके ट्रांसलेशन को इन डिसेबल कर देगा। तो उसका ट्रांसलेशन नहीं होगा तो फेरेटिन की अमाउंट बॉडी में कम होगी। फेरेटिन की अमाउंट बॉडी में कम होगी तो वो आयरन को अब बाइंड कम करेगा। और अपन को पता है कि फेरेटिन तो सिर्फ स्टोरेज फॉर्म के लिए यूज आता है, तो अब स्टोर नहीं हो रहा है, स्टोर कम होगा आयरन, तो जो फ्री आयरन है उसको बॉडी ट्रांसफेरिन को बाइंड करके और उसको इरिथ्रोपोइसिस में हेल्प कर सकती है। तो इस तरह से बॉडी दोनों चीज़ों को रेगुलेट करेगा अगर आयरन का इंटेक कम भी है और ज़्यादा भी है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी। बट एज अ मेडिकल स्टूडेंट आई वुड लाइक टू आस्क यू व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। देखिए वैसे तो एनीमिया के सिम्टम्स कॉमन होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया का कोई सिम्टम स्पेसिफिक हो जिससे हम ये बता पाएँ कि ये पेशेंट आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया का ही है। लाइक कि हर एनीमिया की तरह आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया भी फैटिग होगा, पेशेंट को डिजीनेस होगा, इरिटेबिलिटी होगी और उसका कंसंट्रेशन पावर कम हो जाएगा और उसमें उसके जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्लो डाउन होगा, बीपी उसका कम होगा, उसमें टेकिकार्डिया होगा। लेकिन ये हर एनीमिया में होता है। बट फिर भी ऐसे 2-3 सिम्टम्स हैं जो कि हम ऐसा देख सकते हैं कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में मोर कॉमन है। जैसे कि कोई लोग किया, इसमें होता है कि जो आपके नेल्स होते हैं वो स्पून शेप्ड हो जाते हैं। या फिर एक चीज़ होती है पीका, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो पेशेंट होता है वो अननेसेसरी चीज़ों को उसको खाने की अर्ज होती है। जैसे कि वो आइस क्यूब्स बहुत प्रीफर करेगा, उसका ऐसा मन होगा कि मैं आइस क्यूब्स को खा लूँ, जबकि आइस क्यूब का कोई बॉडी में कोई सेंस नहीं है, ना कोई न्यूट्रिशन ना कुछ और है, बट उसमें ऐसी अननेसेसरी चीज़ों को खाने के लिए अर्ज होगा। या फिर रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है जिसमें कि पेशेंट कंटिन्यूसली अपने लेग को वाइब्रेट करता रहता है कि उस वो अनकॉन्शियसली करता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो हम इनसे शायद ऐसा लग सकता है कि जो अनीमिया है वो शायद आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया है। बट फिर भी ऐसा कोई स्पेसिफिक सिम्टम आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया का नहीं है, सारे अनीमिया में सिमिलर सिम्टम्स होते हैं। जी, तो अगर एनीमिया में कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है या फिर क्लिनिकल फीचर नहीं है, तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? इसका डायग्नोसिस क्या होता है? ये आपने बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा। इसके लिए हमें लेबोरेटरी डायग्नोसिस करना पड़ेगा कि जैसे हमने क्लिनिकल फीचर देखे और हमें ऐसा लगा कि शायद ये अनीमिया का या फिर आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया का पेशेंट है, तो हम उसके लिए लेबोरेटरी टेस्ट परफॉर्म करेंगे जिसमें हम एक चीज़ कर सकते हैं कि पेरिफेरल ब्लड स्मीयर को माइक्रोस्कोप में चेक कर सकते हैं। तो उसमें जो आरबीसी होंगी वो हाइपोक्रोमिक होगी और वो माइक्रोसाइटिक होगी और उनमें एनआइसोसाइटोसिस और पोइक्लोसाइटोसिस होगा। इन चीज़ों का मतलब ये है कि जो नॉर्मल आरबीसी है उसमें जो सेंटर होता है वो थोड़ा लाइट कलर का होता है, बट जो पेरीफेरी होती है वो डार्क कलर की होती है ड्यू टू अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। लेकिन सिंस यहाँ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में हीमोग्लोबिन कम है, तो जो पेरीफेरी है वो भी लाइट होगी और जो सेंटर होगा जो बिना कलर का था वो बड़ा होगा। तो ये हाइपोक्रोमिक होता है, प्लस जो आरबीसी की साइज है वो यहाँ छोटा होगा, तो ये माइक्रोसाइटिक भी होगा। और ये इसलिए होता है क्योंकि साइटोप्लाज्मिक मैच्योरेशन बिना आयरन की पूर्ति के पूरा नहीं हो पाता। एंड देन देयर इज एन आइसोसाइटोसिस एंड पोइक्लोसाइटोसिस, मतलब कि आरबीसी की शेप और साइज दोनों ही वेरिएबल होंगी। तो ये हम पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में देख सकते हैं, या फिर हम आयरन प्रोफाइल टेस्ट भी कर सकते हैं जिसमें हमें पता लगेगा कि टोटल अमाउंट ऑफ सीरम आयरन उसकी अमाउंट कम हो जाएगी। और उसमें हमें ये भी पता लगेगा कि जो आयरन की बाइंडिंग कैपेसिटी है वो यहाँ इंटरेस्टिंगली बढ़ जाती है। और ये हम इससे भी समझ सकते हैं कि बॉडी में सिंस आयरन कम है तो ऑब्वियसली बॉडी की टेंडेंसी होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आयरन को बाइंड करे और उसको अपने यूज़ के लिए बचा के रखे, तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। लेकिन टोटल सीरम आयरन जो अमाउंट होता है वो कम हो जाता है, प्लस जो सेचुरेशन पॉइंट होता है वो भी कम हो जाता है आयरन का बॉडी में। या फिर हम जैसे ये भी चेक कर सकते हैं कि ये जो आरबीसी इंडिसेज है, आरबीसी इंडिसेज का मतलब है कि जो आरबीसी के हम इसमें हम जैसे एमसीवी करते हैं, जैसे एवरेज कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम होता है, या फिर जैसे हम एमसीएच करते हैं मेन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, या फिर एमसीएचसी मेन कॉर्पस्कुलर
हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, ये सारी अमाउंट कम हो जाएंगी और आरबीसी का काउंट कम हो जाएगा, रेटिकुलोसाइट का काउंट कम हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमें आरबीसी इंडिसेस में दिखेंगी। बट यहाँ भी एक चीज़ है जो बढ़ी हुई दिखेगी और ये हमें बढ़ी हुई चीज़ें नोट करनी है बिकॉज सारी चीज़ें कम हो रही हैं। वो होगा रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, यानी कि जो शेप में जो फर्क है, यानी कि जो सबसे छोटी आरबीसी हो सकती है और जो सबसे बड़ी आरबीसी हो सकती है, उसका जो बीच का डिफरेंस है वो यहाँ नॉर्मल से ज़्यादा होगा। क्योंकि बॉडी में सारी आरबीसी जरूरी नहीं है कि शेप साइज की हो, नॉर्मल कंडीशंस में भी उनमें वेरिएशन होता है। बट जो इस केस में जो उनके बीच में जो गैप होगा वो बढ़ जाएगा। तो आरबीसी इंडिसेज में हमें ध्यान रखना है कि सब चीज़ें कम हो रही होंगी, लेकिन जो रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ था आरडीडब्ल्यू वो बढ़ जाएगा। और आयरन प्रोफाइल में भी सारी चीज़ें कम हो रही होंगी। बस एक चीज़ जो बढ़ जाती है जो हमें ध्यान रखनी है वो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। तो इन चीज़ों से हम देख सकते हैं। और या फिर इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं जिनसे हमें पता लग सकता है कि आयरन की बॉडी में कमी है। वो है जैसे TFR1 की अमाउंट बढ़ जाएगी, यानी वो रिसेप्टर बढ़ जाएंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आयरन को बाइंड कर सकें। तो इससे भी हम देख सकते हैं कि बॉडी में आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है। तो इनसे हमें कंफर्म हो जाएगा कि बॉडी में जो एनीमिया है वो आयरन डिफिशिएंसी है। तो हमें पता तो लग गया कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का डायग्नोसिस कैसे करना है। तो इसे हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं या फिर इसका प्रोग्नोसिस किस हद तक होता है? इसके बेसिकली जो प्रीफर्ड ट्रीटमेंट है वो है ओरल इंजेक्शन ऑफ आयरन। इन इसका एग्जांपल है फेरस सल्फेट। तो इसमें हमें ये ओरल इंटेक करना होता है आयरन का, सप्लीमेंट्स का, एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स, जिससे कि ये रिकवर हो जाए। और कई केसेस में हम ये पेरेंट्रल भी कर सकते हैं इलाज, जैसे कि हम इन इंट्रावेनस इंजेक्शन देते हैं। उनका एडेड कोई बेनिफिट नहीं है, बट लाइक इन सम पेशेंट्स ये ओरल इंटॉलरेंस हो जाता है कि, या फिर बॉडी में जैसे उनके जीआईटी ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्टली वहाँ से अब्जॉर्प्शन कर नहीं पाते आयरन का। तो उन केसेस में हम इंट्रावेनस इंजेक्शन दे सकते हैं। और या फिर हमें सिम्टोमेटिक चलना चाहिए, जैसे कि हमने जो थोड़ी देर पहले कोज पढ़े थे उनके बेसिस पे उन कोज को हम ट्रीट करने की कोशिश करेंगे कि जो ज़्यादा कोज है उसको हम ट्रीट करें। या फिर बहुत सीवियर केस हो गया तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं, जिससे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते ही आरबीसी की अमाउंट बढ़ जाएगी और तुरंत बॉडी में जो नॉर्मल लेवल है हीमोग्लोबिन का वो हम अचीव कर लेंगे। Thank you, Yogendra, for giving us this information. And also, thank you for the Royal Metropolitan University and Student Council. And also, for the viewers, great thanks from me for listening this podcast. Thank you.